خیریت سے ہیں جناب؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی، اللہ کا شکر ہے، غریب نواز کا کرم ہے۔ ہم، جی کون؟ میں جلال الدین چشتی بول رہا ہوں۔ اچھا میں چشتی سلسلہ سے ہوں، اس لیے میں نے کہا غریب نواز کا کرم ہے۔ تو اچھا، اور بتائیے جناب، آپ کا کیا حال ہے؟ کہاں رہتے ہیں؟ کیا کاروبار ہے، کام ہے؟ کیسے یاد کرنا ہوا؟ یاد اس لیے کیا کہ گروپ میں آپ کا میسج دیکھا، سجدہ تعظیمی کے تعلق سے آپ کچھ لکھ رہے تھے، تو ہوں، آپ کا میسج جو ہے مکمل نہیں تھا، تفصیل نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں اور اپنی اصلاح کر لوں۔ جی جی، بتائیے سجدہ تعظیمی کے متعلق کیا اس شریعت میں کیا ہے، پچھلی شریعت میں کیا تھا، ذرا بتائیے۔ جیسے آپ نے جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ کیسے ہیں، تو آپ نے کہا غریب نواز کا کرم ہے، جی، تو یہاں پر یہ جملہ غیر مناسب ہے۔ کیوں غیر مناسب ہے؟ ذرا تفصیل سے وضاحت سے بتائیں۔ خدا کا رحم اور کرم بندوں پر ہے، ہم، تو تو یہاں پر اللہ کا کرم حدیث، ہے تو اللہ والوں کا کرم نہیں ہو سکتا؟ اللہ والوں کا کرم کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو پھر میں اللہ والوں کا کرم تو کہا، میں نے کہا غریب نواز کا کرم ہے۔ غریب نواز کا مناسب کرم، میں کیسے کیسے مناسب کیسے نہیں ہے، وہ ذرا آپ وضاحت کریں۔ غریب نواز کا کرم ہے تو تو کرم کیسے ہوا غریب نواز کا، اور خدا کا کیسے نہیں ہوا؟ خدا کا بھی کرم ہے، غریب نواز کا بھی کرم ہے، تو اس مناسب کا آپ نے۔ مطلب ہے ہاں، اس کا مطلب ہے کہ خدا کا بھی ہے، یعنی پہلے غریب نواز کا ہے آپ پر۔ اللہ والے جو دیتے ہیں اللہ کی عطا سے ہی دیتے ہیں، اللہ والوں کا جو کرم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ والوں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ والے محبت جس اللہ والے اپنے غریب غریب نواز نے آپ کو کیا کیا دیا ہے؟ غریب نواز کا میں کرم سمجھتا ہوں، جو بھی بھارت میں میں مسلمان بن کر جو جی رہا ہوں، میں جو ایمان کے ساتھ گھوم رہا ہوں بھارت کی دھرتی پر، یہ غریب نواز کا ہوں، دیا ہوا ہے۔ غریب بالکل نواز یہ اگر مجھے ایمان نہیں دیتا، غریب نواز بھارت کی دھرتی پر نہ آتے، آج کون سے بت خانے میں ہوتے ہم لوگ، آپ بھی۔ اچھا، پھر قرآن کریم کی آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب؟ ترجمہ کیجئے۔ نہیں، آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اگر غریب نواز ہم لوگوں کو ایمان نہ دیتے تو آج ہم ایمان والے نہ ہوتے، تو اس آیت میں اسی ایمان کا تذکرہ ہے۔ جی ظاہر سی بات ہے، جب آپ اتنے سوال کر رہے ہیں تو پڑھے لکھے ہوں گے، جی جی جی، قرآن حدیث کو جانتے ہوں گے، تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، آیات پڑھ رہے ہیں، تو ترجمہ بھی مکمل کیجئے، آدھا آپ پڑھیں گے آدھا میں پڑھوں گا، ایسے نہیں، جتنا میں دیکھیے، پڑھنا ہوگا تو میں پڑھوں گا، آپ قرآن کریم کا بتائیے۔ ہے تو میں پڑھ رہا ہوں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اب وہ آیات ترجمہ بھی کیجئے، اس میں دعویٰ بھی کیجئے، اس آیات کے میں کیسے خلاف ہوں وہ بھی ذرا بتائیے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہوں، اور جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ جی، تو ضلالت و گمراہی اور ایمان کے مالک تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ دوسرا کسی کو بھی ہدایت دینے والا یا پھر ہدایت کا اسباب کسی کو سمجھ نہیں سکتے؟ دونوں چیز میں بہت فرق ہے، ہدایت کے اسباب مہیا کرا دینا اور ہدایت پر لا کر کے کھڑا کرا دینا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت دے دینا کسی کے ہاتھ میں ہے، اور اسباب اختیار کرا دینا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ آپ خود بھی فرق محسوس کر رہے ہیں۔ محسوس کر رہا ہوں۔ اسی فرق کو قرآن کریم نے سمجھایا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ منیب۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ خواجہ ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محترم چچا تھے، ان کا وصال کا وقت آیا تو آپ ان کی اس وقت نزدیک اس وقت گئے عیادت کے لیے اور ملنے کے لیے۔ یہ انتہائی انتقال کا وقت تھا، اس وقت ابو جہل وغیرہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، ہمارے کان میں پڑھ لیجئے، ہم دیکھ لیں گے، خدا سے ہم جو ہوگا آپ کے ایمان کے بارے میں ہم بات چیت کر لیں گے۔ تو ابو جہل وغیرہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ کہیں موت کی ڈر سے یہ اپنا دھرم اور دین بدل نہ لیں۔ پھر چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی
کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ کہ میں نے آپ کو مبلغ بنا کر کے بھیجا ہے، نذیر اور مبشر بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کا کام دعوت و تبلیغ تک ہے، وما علینا الا البلاغ، قرآن کریم کا آیت ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام جو تشریف لائے پوچھے کیا میں نے تمہیں دین تم تک پہنچا دیے؟ وہ نے جواب دیا ہاں پہنچا دیا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آیت خود بتلا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے اسباب پیدا تو کر سکتے ہیں، ہدایت کی طرف بلا تو سکتے ہیں، لیکن ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ ہدایت کے مالک اور ایمان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اچھا، یہ بات آپ کی بات مکمل ہوئی، میں خاموشی سے جی بہت دیر تک سنا۔ جی تو آپ نے جو باتیں کہی اس میں سے میں آپ کی، پہلے تو نبی ہدایت نہیں دے سکتے یہ آپ نے کہا، جی اور اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کے اسباب دوسرے ہوتے ہیں لیکن ہدایت دے نہیں سکتے۔ جی اور دوسری بات آپ نے گفتگو کے دوران آپ نے سرکار کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار کہا۔ آپ کے ایک چہیتے عالم، آپ کے مسلک کے دیوبندیوں کے بہت چہیتے اور بہت معتبر، ان کی بہت تعریف کرتے دیوبندی لوگ، میں نام بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ انہوں نے سرکار کہنا غلط کہا، انہوں نے کہا کہ سرکار کہنا بالکل غلط ہے، ہمارے نبی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، سرکار نہیں کہنا چاہیے۔ تو کیا آپ کے علماء آپ کو غلط کہہ رہے ہیں؟ اس بات کو آپ تسلیم کریں گے؟ سرکار نہیں کہنا چاہیے تو آپ نے سرکار کہا، یہ بھی آپ کے علماء کے حساب سے غلط ہے، ہمارے حساب سے غلط نہیں، ہم کہتے ہیں سرکار، اور ہمارے کہنے کو چڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو بریلی بھی لوگ حضور کو سرکار کہتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات سنیے، بات مکمل سنیے نا، جواب تو لیتے جائیے۔ نہیں بات دونوں آپ کی بہت لمبی باتیں ہوئی، میں ذرا مکمل کر لوں۔ آپ نے جو حضور کے بارے میں کہا، اب دوسری بات آپ کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نے ایک آیات سے دلیل بنایا اور کہا کہ حضور ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ 25واں پارہ میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ یہ جو آیت میں ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ ہی ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی تہدی طرف۔ کا معنی یہاں کیا ہے؟ تہدی، وہی وہ جو یہ ہے نا جہاں پر آپ نے آیت پڑھا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اس کا ترجمہ انک لتہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت، جہاں وہ ابو طالب کے متعلق آپ نے دوسری جگہ سے پڑھا، اور ایک جگہ یہ بھی ہے یہاں پر صلہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ یہاں یہ جو لام تاکید ہے، یہاں لتہدی الی صراط مستقیم یہاں ہے، اور دوسری جگہ جو ابو طالب کے بارے میں ہے وہاں پر ہے انک لا تہدی من احببت۔ اور یہاں پر لام کے ساتھ اور کون سا صلہ استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تہدی، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، آپ اور ہدایتن کا صلہ اگر الہ ہے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ ہدایتی ہدایتن کا اگر صلہ آ جائے، شرط یہدی پڑھی ہے آپ نے؟ ہاں پڑھے ہیں۔ تو اس میں تو کیا معنی ہوتا ہے؟ شرط تہذیب میں جو ارادت الطریق اور ارادت الطریق جو ہے، اس میں جو الہ کی بحث میں ہے، تو اس میں کیا پڑھے ہیں آپ، کیا سمجھے ہیں؟ تو یہاں اے نبی آپ ہی ہدایت دیتے ہو، میں یہ سمجھا، ابھی آپ بتاؤ آگے کیا ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ یہ ہے لتہدی، ضرور آپ ہدایت دیتے ہو، اچھا ٹھیک ہے، یہ الی صراط مستقیم۔ قرآن نکالیے، آپ جو ہے صلہ موصول وغیرہ سے نہیں، آپ کے اکابر نے جو ترجمہ کیا ہے، خود اشرف علی تھانوی کے ترجمہ ہی کھولیے، آپ ہی ہدایت دیتے ہو، اور نبی کا نام ہادی ہے، اللہ کے نبی کی 99 جو مشہور نام ہے اس میں سے ایک نام ہادی ہے، ہدایت دینے والے۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کا پہلے ہمیں اسکرین شاٹ بھیجیے۔ آپ خود ترجمہ کیجیے، اگر اسکرین شاٹ بھیجنے کے ابھی یہ نہیں ہے، آپ خود یہ لفظی ترجمہ آپ خود کیجیے۔ نہیں آپ لفظی ترجمہ کیجیے نا، یہاں لفظی ترجمہ کیجیے آپ لفظی ترجمہ۔ ابھی اسکرین میں ابھی قرآن کا ترجمہ بھیجنے کے لیے مجھے پھر وضو کرنا پڑے گا،
फिर कुरान शरीफ ढूंढना कोई पड़ेगा। बात नहीं, वजू कर लीजिए, दीन का काम दी नहीं, आप ये भी तो। कॉल काट के एक मर्तबा देवबंदी उलमा कॉल काट के भागते हैं तो दोबारा फिर कॉल उठाते नहीं, इसलिए आप बात मुकम्मल कीजिए। अभी आप कह रहे हैं कि नबी हिदायत नहीं दे सकते, नबी का नाम हादी, ये तो मानते हैं आप? नबी के नाम हादी है, हादी का क्या मतलब है? हिदायत देने वाले। नबी का नाम हादी है, बिल्कुल। दिखा सकते हैं? हाँ, कुरान शरीफ में 99 नाम जहाँ लिखा हुआ है, आपके मस्जिद में जाके उठाइए, जहाँ एक तरफ अल्लाह के 99 नाम है, दूसरी तरफ नबी के 99 नाम है, तो उसमें नाम में हादी है। हादी या महदी, हादी भी है, महदी भी है, तो यासीन, मुजम्मिल, तो मुद्दस्सिर। हादी अगर चलिए मानते हैं, तो वहाँ हादी किस माने में है? हिदायत देने वाले। हादी का किस माने में होता है हादी? अच्छा, फिर तो कुरान करीम की साथ में कोई आप तजाद पैदा कर रहे हैं। तजाद नहीं है, जहां पर आपको लफ्जी दिख रहा है। इसी तरह जो खवारिज ने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर शिरक का फतवा लगाया था एक आयत से कि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, तो वो जो दूसरी आयत में अल्लाह ताला खुद अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन फरमाया, अल्लाह दूसरे हाकिम, तो तजाद बनाता है। जो कम इल्म होता है ना, वो तजाद बनाता है। हमारा दावा है कुरान में तजाद नहीं है, आपकी समझ में कमी है। एक बात का तो पहले जवाब दे दीजिए। पहले आपने जो आयत पढ़ी है और आपने कहा कि ये तर्जमा उन्होंने की है, तो जरा उसकी तर्जमा और तशरीह तो भेज दीजिए, या आप पढ़ करके हमें सुना दीजिए। अभी आप भी आलिम है ना, आप खुद ही तर्जुमा कीजिए। जब आलिम है, आप अरबी पढ़े हैं, अरबी का आपको सलाह मौसूल सब मालूम है, शरह तहजीब मालूम है, शरह हिकाया मालूम है, सब कुछ आपको मालूम है, तो आप तर्जुमा कीजिए, लफ्जी तर्जुमा। वइन्नका, और बेशक, लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, और आपने बेशक आप ही हिदायत देते हैं। ये तर्जुमा किसका है? ये आपका है या आपके अकाबिरीन में से किसी का है? हाँ, ये तर्जमा आपका है या आपके अकाबिरीन में से किसी का है? जैसा आप आलिम है, मैं भी आलिम हूँ, मैं लफ्जी तर्जुमा मैं कर रहा हूँ। लामे ताकीद है, तहदी, हिदायत देते हैं, और वइन्न का ताकीद है, और बेशक आप ही हिदायत देते हैं। अल्लाह जो हिदायत देता है, जैसा देखिए कुरान शरीफ की आयत में एक जगह अल्लाह फरमाता है, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम, मौत के फरिश्ते मौत देते हैं। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह मौत और हयात को अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हिना मौतिहा। कहीं भी जो कुरान में जहां मौत अल्लाह की तरफ निस्बत है वहां जाती है, और जहां अज़राइल अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत है वहां अताई है। अज़राइल अलैहिस्सलाम की सिफात अल्लाह ताला की अता से है, और अल्लाह की सिफात अल्लाह की जाती है। इसी तरह हिदायत का जब अल्लाह की तरफ निस्बत होगा, तो हिदायत अल्लाह ताला जाती तौर पर अल्लाह खालिसतन हिदायत देता है, और बाकी सारे मखलूक जो हिदायत के असबाब है, अंबिया, औलिया, सुलहा, अल्लाह की किताब, सारी चीजें जो भी है, वो अल्लाह ताला उनको हिदायत के लिए जरिया बनाया है। हिदायत के लिए उनके अंदर हिदायत देने की सिफत अल्लाह ने रखी है। अल्लाह की किताब से भी, किताब हिदायत देता है, अल्लाह की किताब हिदायत देते हैं। अच्छा, आपने जो आयत पढ़ी है उसको फिर से पढ़िए, और कौन सी आयत नंबर कितनी है, किस सूरत की है? मैं अभी आयत निकाल के बता रहा हूँ। सूरत शूरा, आखिरी रुकू में, सूरत शूरा के आखिरी रुकू में मैं पढ़ता हूँ, आयत सुनिए। वकज़ालिका औहैना इलैका रूहन मिन अम्रिना मा कुन्ता तदरी मल किताबु वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाअु मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। आयत नंबर कितनी है? आयत नंबर मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, आप आयत देख लीजिए, मैं भेज रहा हूँ आपको। आपके नंबर के लास्ट में कितना है जनाब? 12 है ना? 72 है, 12। ये देखिए, चलिए, हाँ मिल गया, ठीक। ये ठीक। किताब वल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशा व इन्नका लतहदी। चलिए, आपने क्या कहा? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या तर्जमा किया है? आप निकाले हैं तर्जुमा?
जी निकाल चुका हूँ। अच्छा, आप तर्जुमा बताइए, थानवी ने क्या तर्जुमा किया है? नबी के हिदायत नहीं, देने का इनकार है। सबसे आप मुझे पहले सबसे आप मुझे पहले आप भेजिए मेरे पास। मैंने कहा कि मेरे पास कुरान शरीफ नहीं है, मैं वजू से नहीं हूँ, वजू करके मैं स्क्रीन से कुरान शरीफ जो नेट से निकाला हूँ उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजा। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने कहा कि थानवी रहमतुल्लाह ने ये तर्जमा किया, कौन सा तर्जमा किया? आप तर्जमा बोलिए। आप पढ़िए तर्जुमा। नहीं नहीं, आपने कहा ना कि अभी आप सुना ये रहे थे ना कि आप लफ्जी तर्जुमा आप कीजिए, थानवी ने जो किया है वो छोड़िए, आप खुद कीजिए। देखिए, मैं खुद तर्जुमा गलत किया। बात, गलत बात। जब आप हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर आए तो फिर इसको छोड़ने की बात कर रहे हैं, गोया आप अपने दावा से हट रहे वही हैं। मेरा दावा यही गलत आप होगा अगर बताइए। मैंने देखिए, कहा थानवी ने यही दावा, तर्जुमा किया, गोया आप दावा बताइए। से हटना और अपने आप को गलत कहना, यही आपकी शिकस्त है। मेरे पास किताब नहीं आता, आपके पास किताब नहीं है, आप नहीं, खुद पढ़िए। जब आप कह रहे हैं कि आपके थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये तर्जमा किया है कि आप मैंने ही हिदायत दे रहमतुल्लाह सकते अलैह हैं। नहीं कहा, मैंने हाँ, रहमतुल्लाह अलैह नहीं कोई कहा। ठीक है, आप रहमतुल्लाह अलैह मत बोलिए यार। हाँ, आपने कहा कि आपके थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, ठीक आपने नहीं कहा, हम भी रहमतुल्लाह अलैह इसको इजाफा समझिए मेरी तरफ से कि आप ही हिदायत दे सकते हैं। ये तर्जमा आपने किया है कि नहीं? आप हिदायत और देते हैं। आप आप ही बताइए, आपका तर्जुमा नहीं क्या है? नहीं, आप लफ्जी तर्जुमा कीजिए, मुझे एक स्क्रीनशॉट मिनट, भेजिए। आप मुझे कहते अभी हैं, स्क्रीनशॉट भेजिए। एक मिनट एक मिनट, आप कहते हैं लाम ताकीद भी है, लाम ताकीद का क्या? आप खुद ही कह चुके हैं यहाँ लाम ताकीद है, गोया आप ही हिदायत देते हैं। हाँ आपका ही ये तर्जमा है कि थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है। फिर हाँ मैं भेजता हूँ आपको स्क्रीनशॉट, घबरा क्यों रहे हैं आप, डर क्यों हाँ रहे हैं? और मुझे ये भी मालूम है कि आप रिकॉर्डिंग चालू किए हुए हैं। हाँ। देखिए, थानवी रहमतुल्लाह अलैह तर्जमा करते हैं, व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, हम्म। और इसमें कोई शुबा नहीं कि आप एक सीधे रास्ते की हिदायत कर रहे हैं। सिरातल्लदी, एक मिनट पूरी बात, सिरातिल्लाहिल्लदी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, यानी उस खुदा के रास्ते की कि उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। एक तरफ आप कहते हैं थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा ये है, हालांकि उनकी खुद किताब बयानुल कुरान जो पूरी दुनिया में डंका बजा रही है, यहाँ खुद कह रही है, गोया आप थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। सिर्फ तर्जुमा कीजिए, अल्फाज मत बढ़ाइए। आप तर्जुमा क्या है, मेरा दावा क्या है, अगर फर्क होगा आवाम बिल्कुल आप, सुनेंगे। हाँ, आवाम को खूब खूब सुनाइएगा, और पहले आप भी एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा कि आपने इसका तर्जमा पहले क्या किया था। हाँ, मैं सुन वइन्नका लूंगा। लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, हाँ, और इसमें कोई शुबा नहीं कि आप एक सीधे रास्ते की हिदायत कर रहे हैं। हाँ, तो सिरातिल्लाह, हिदायत कर रहे उसी, हैं, तो एक नबी हिदायत मिनट कर रहे हैं, एक मिनट पूरी बात, हिदायत दे आयत, रहे हैं। हिदायत आ- करना देना दोनों एक ही तो बात है। हिदायत, आप हिदायत कर रहे हैं या सीधे हिदायत दे रहे रास्ते हैं? की हिदायत कर रहे हैं, तो करना और हिदायत देना में, थानवी का, करना और दे, मैं एक कहता हूँ मिनट, थानवी का तर्जुमा ये गलत है, डिक्शनरी के अच्छा एतबार से भी गलत है, थानवी का तर्जुमा ही गलत है। क्योंकि अच्छा, हादी, हदा यहदी, हदा यहदी, ओह, अहदा कितने बड़े यहदी, जाहिल हैं आप, इसका सही में बता मतलब है दीजिए। हिदायत देना। अच्छा, और जब सिला इला हिदायत सिला, देना। अच्छे के हिदायत देना, हदाया दी, और हाँ, ये जो हिदायत इला देना। के, आप डिक्शनरी, आप चाहे सरफ का किताब पढ़े या फिर डिक्शनरी खोलकर देखे, हदा यहदी का मतलब है हिदायत देना। बिल्कुल थानवी मैं कह इसको रहे हैं मानता हिदायत हूँ। करना। बहरहाल मफहूम एक ही सुनिए है, तो, सुनिए मफहूम एक तो, ही है। नबी हिदायत देते हैं, अरे थानवी से भी साबित हुआ। अरे मौलाना मौलाना सुनिए तो, आप जो कह रहे हैं हदायती हिदायतन, हिदायत देना, मैं इसका इनकार कहाँ कर रहा हूँ? तो आप तो मैं शुरू से ही इनकार कर रहे हैं, नबी हिदायत नहीं अरे दे सकते। आप शुरू से अरे वही भाई, उसी इनकार पर ही सारा बहस, नबी हिदायत नहीं दे सकते। और हम कह रहे हैं सुनिए नबी तो, ही हिदायत देते हैं, नबी ही सुनिए हिदायत तो, देते हैं, और कुरान से ये साबित हो गया। सुनिए तो, हदायती हिदायतन के माना हिदायत देना, ठीक, हम्म। और यहाँ किस सिला के साथ इस्तेमाल हुआ है? सिला के बदलने से माने में फर्क आता है या नहीं, ये तो बताइए। थानवी ने माने में फर्क किया। थानवी ने कहा हिदायत देना, हिदायत करते हैं, हिदायत देते हैं, एक नहीं, ही हुआ। हिदायत नहीं, गलत मैं बात, हिदायत, हिदायत देते यहाँ नहीं लिखा हुआ, हाँ? हिदायत कर रहे हैं, तो और हिदायत करना और हिदायत देना करना में, का क्या मतलब है? आप अब यहाँ बताइए आप कितने बड़े ये भी आलिम साबित हो कीजिए अपने कि सिला, हाँ, मौसूल और यानी सिला, ये सिला में फर्क होता है, किस वजह से फर्क होता है, ये भी वजह आप करेंगे। आपको ये पता, इतना फर्क पता नहीं है कि करना और देना में क्या फर्क है, तो आपसे बहस करना गोया अपनी रात को जाय करना है। इसमें लुगत में तो है हिदायत देना, आप जाया कर रहे हैं, जिंदगी जाया कर चुके हैं आप, क्योंकि आप अच्छा देवबंद में पढ़कर
आप कुरान का सही अच्छा तर्जुमानी भी नहीं कर पा रहे हैं। नबी के अच्छा सिफात का, जहाँ नबी के नाम मशहूर नाम है और अच्छा हिदायत देने चलिए वाले, चलिए चलिए हमारे मैं आका एक हिदायत देने वाले हैं। चलिए ये हाँ पूछता हूँ आपसे। तो आप जैसे आप आला हजरत को मानते हैं, ठीक, जी। यानी उनके मसलक को फॉलो करते हैं। तो जरा हाँ आप जिस तरह मैं आप कहेंगे तो अभी स्क्रीनशॉट इस किताब का भेज देता हूँ। आप भी जरा आला हजरत ने जो इसका तर्जमा किया है मुझे वो तर्जमा भेज दीजिए, फिर आगे बातचीत तर्जुमा होगी। अभी नहीं मेरे नहीं, हाथ में नहीं है। देखिए, आप भागिए मत और डरिए मत, दो बात नहीं है। मेरे हाथ में भी नहीं था, लेकिन आपने मुझसे मांगा, मेरे पास ये किताब थी भी नहीं, मैंने दूसरे की किताब लेकर के आपसे भेज रहा हूँ, ताकि आप ये अपने लोगों में ये बावर न कराएं कि थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तक का हवाला मैंने दिया और तर्जमा पेश नहीं कर सका। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, और आप भी अपने आला हज़रत के तर्जमा का स्क्रीनशॉट भेजिए, फिर इंशाल्लाह मजीद आगे बात होगी और मुफस्सल बात होगी। रुकिए, हर आप लाइन में ही हाँ, रहिए। एक बार भागेंगे तो आप फिर नहीं आएंगे आप। नहीं, ये तर्जुमा मैं एक मिनट, मैं एक नेट से निकाल के मुसलमान दे रहा हूँ, आला हजरत का तर्जुमा। वादा तर्जुमा खिलाफी नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। तर्जुमा हाँ निकालिए, खूब अच्छी तरह से निकालिए और स्क्रीनशॉट मुझे तर्जुमा भेजिए। सूरत शुरा। हाँ, और बेशक तुम जरूर सीधी राह बताते हो। देखा आपने तर्जमा, आपके खुद आला हजरत क्या कह रहे हैं। हम तो कहेंगे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे, गरचे आप थानवी रहमतुल्लाह अलैह ना कहें। नहीं, आप अशरफ अली थानवी को हम रहमतुल्लाह अलैह क्यों नहीं कहते हैं? वो नबी के गुस्ताखी की है। आप आला हजरत ने कोई गुस्ताखी नहीं खैर, किया, कोई गलत ये मौजू अभी नहीं बहस ज़ाहिर किया। सी बात है, मौजू इस से वजह इनहराफ से हो रहे आप हैं। कहेंगे, खैर चलिए, आप अगर आइए तब सुनिए, तक। अगर कोई गुस्ताखी होती आला नहीं हजरत नहीं, से देखिए, तो क्या आप एक रहमतुल्लाह अलैह मिनट कहते? एक मिनट एक मिनट, बात आप आगे मत बढ़ाइए, इसी बात पर आइए। वो इन्नक लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम पर पहले आइए, तर्जमा आप कीजिए बेशक आप। आप राह बताते हो, राह बताने वाले राह को ही बताते हिदायत हैं, देना कहते हैं। देखिए हिदायत देना आप कहते हैं। गोया आप जो आला राह हजरत से बड़े बताते हुए हैं हैं, उसको हिदायत देने वाला कहते हैं, यानी हिदायत देने वाले। आपका दिमाग आला हजरत से भी बड़ा हुआ है, आला हजरत का मैं गुलाम हूँ, आला हजरत का गुलाम हूँ। यानी आपका दिमाग आला हजरत से भी बड़ा हुआ, जो आप बड़ा आला हजरत कैसे का होगा? तर्जमा मैं एक गुलाम हूँ, आपने हमारे आला हजरत हमारे आप आला सरदार हजरत है। को नहीं मान रहे हैं, उनका कौन तर्जमा बोले? नहीं मान रहे हैं। तो बताने वाले हिदायत देते हैं, नहीं, वो देखिए, राह बताते जब हैं। आला हजरत का आपके सामने तर्जमा है तो फिर आप, यानी मसलन जो है ना कि ये कहा मैंने, आपने कहा कि थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा मुझे दिखलाओ तर्जमा करके, उसके बाद मैंने अपनी कोई बात कही है, मैंने अपनी तरफ से कोई तर्जमा किया है? जवाब दीजिए मुझे। हाँ, जब आपने कहा कि थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा दे पेश करो, मैंने तर्जमा पेश किया आपको, पेश पेश किया कि नहीं? पेश कहाँ किया? अभी आपने भेजा नहीं। मतलब आपको सुनाया कि नहीं सुनाया, ये बताइए मुझे। सुना, मैं भी सुनाया। हाँ एक मिनट, मैंने सुनाया तो क्या मैंने अपनी तरफ से फिर कोई तर्जमा किया है, यानी मसलन जो है ना कि ये बात कह करके, लेकिन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यानी आप, नहीं, यानी नहीं कहने का नहीं, क्या जब मतलब वही है। जब बड़े नबी की हिदायत बात आ देते गई है हैं। तो, जब बड़े की बात आ गई है और आप मान रहे हैं कि आला हजरत आपसे बड़े हैं, तो फिर आप अपनी तरफ से क्यों ऐसा है वैसा है? यहाँ जब ऐसा है, मैंने अकाबिरी, कुछ नहीं कहा। एक मिनट, जब अकाबिरीन की बात आ गई तो फिर आप अपनी तरफ से यानी मसलन जो है ना कि नहीं कह सकते हैं। आप बहस सिर्फ उसी पर चलेगी, आप किस कमजोर पर पड़ते चलेगी? जा रहे हैं। किस यानी पर बहस चलेगी? अब आपके आला हजरत का तर्जमा और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के तर्जमे पर बात होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी इस बात की है कि दोनों का तर्जमा सेम मिलता जुलता है। हाँ, नहीं, दोनों का सेम मिलता जुलता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ और हाँ, आप भी भेजिए। मिलता जुलता बिल्कुल नहीं है। हमारे आला हजरत का तर्जुमा का कोई मुकाबिल, कोई सानी नहीं ठीक है चलिए, दुनिया में। आपने आला हजरत का तर्जमा क्या किया, फिर से कीजिए। आप, और बेशक तुम जरूर सीधी राह बताते हो। बताते हो, और आप क्या तर्जमा कर रहे थे? यकीनन आप ही आप हिदायत ही दे हिदायत सकते देते हैं। हो। हाँ, देते मैंने हो, कहा आप हिदायत देते हो। देते हो तो हाँ, आपका तर्जमा आला हजरत से मेल खा रहा है? बिल्कुल मिल खा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। हिदायत, आप तो हिदायत का मुनकिर थे, नबी हिदायत दे हाँ, नहीं सकते। बिल्कुल, और हम हमने अभी भी, कहा नबी ही हिदायत दे, आप ही हिदायत देते हो, हिदायत आप की ही, तरफ यानी राह आप ही दिखाते हो। हिदायत देते हैं का क्या मतलब हुआ, जरा इसकी तशरीह कीजिए। यानी आपके अलावा कोई और हिदायत नहीं देता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? नबी के देने के बाद ही तो बाकी लोग हिदायत दिए हैं। बाकी नबी से पहले और किसने दिया बताइए? अच्छा, आप हिदायत दे सकते हैं लोगों को? हाँ, बेशक आप ही यानी हिदायत देते हैं। यानी
کسی غیر مسلم کو آپ براہ راست ایمان آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کسی کو ایمان کی دولت سے نواز دیں؟ بے شک اچھا، جتنے کو ہدایت دیے ہیں، جتنے کو ہدایت دیے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد و سعید عبد الرحمن بن عوف ابو عبیدہ ابن جراح تمام صحابہ بدری اور احد تو کے اور یہ یعنی تمام صحابہ اکرام کو تمام دنیا میں جتنے ہدایت والے ہیں سب کو ہدایت نبی نے ہی دیا ہے، اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اللہ اور نبی کو جو الگ کرتا ہے وہ منافق ہے۔ ہاں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ جو کیا منافق آیت ہوتے ہے؟ ہیں اللہ اور رسول میں فرق ایک کرتے ہیں۔ منٹ کیا آیت ہے قرآن کی جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن جو اللہ اور نبی میں فرق کرتے ہیں وہ منافق ہے؟ وہ آیت پیش کیجیے۔ وہ آیت میں دکھاؤں گا ابھی میرے نہیں دکھاؤں گا، نہیں آپ کو دکھانا پڑے گا۔ مستحضر نہیں، اگر ہوگا تو نہیں اب آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں آپ قرآن پر بہتان تراشی کر رہے ہیں، اب آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، آپ کو دکھانا ہی ہوگا۔ آپ ایک تو موضوع سے انحراف کر رہے ہیں، پھر دوسری طرف یہ کہ یہاں سے بھی آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں، آپ کو دکھانا ہوگا، ایسے نہیں چلے گا۔ اب دکھائیے، چونکہ بات جب آتی ہے تو پوری آنی چاہیے، آپ دکھائیے، وہ آیت پیش کیجیے۔ وہ آیت پھر 2 منٹ رکنا پڑے گا، رکیے۔ بالکل میں رک جاؤں گا، لیکن آپ کو پیش کیے بغیر آگے بڑھنا نہیں ہے، اور اگر نہیں پیش کریں گے تو آپ کو مہلت دی جائے گی، چاہے 1 مہینہ لے لیجیے۔ 1 منٹ، کوئی آپ مانتے ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اللہ کے دینے سے ہی نبی دیتے ہیں؟ ہاں یہ بات مان گئے؟ یہی تو بات چل رہی ہے کہ جو اللہ دیتے ہیں نبی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت تبلیغ کے لیے منتخب کیا، پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو اللہ ایمان دے دیتے ہیں، اور جنہیں مرضی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ انہیں ایمان نہیں دیتے۔ نہیں، اللہ خود نبی کی یہاں گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی نبی کی تسلیم صفات ہی ہدایت دینا ہے۔ ہدایت جتنے ہدایت نبی کو اللہ تعالیٰ جن کے نصیب میں ہدایت رکھا ان کی ہدایت نبی کے ذریعہ سے ہی ملے گی، ان کو نبی الگ تو کہیں سے نہیں ملے گی۔ ہم نے کب اس کا انکار کیا کہ ذریعہ تو بن سکتے ہیں، سبب تو بن سورہ سکتے ہیں۔ نساء، 1 منٹ، سورہ نساء آیات نمبر 150، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو منافق ہیں، جو منافق ہیں، 1 منٹ پوری آیت پڑھیے۔ 150 نمبر آیت ہے سورہ نساء۔ ہاں، اس آیت کی مجھے ترجمہ بھی پیش کیجیے اور تشریح بھی پیش کیجیے، تب آگے بات بڑھے گی۔ آپ جو تفریق کی بات کر رہے ہیں، کون سی تفریق کی بات چل رہی ہے، ذرا اس کا واضح مطلب پیش کیجیے۔ اور یہ تفریق اسی طرح کی آیات، اس تفریق کے بارے میں دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان منافقوں کو کیوں برا لگا کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے غنی کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے غنی کر دیا۔ ما اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ یہ اللہ کی آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ ان منافقوں کو برا لگا کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے غنی کر دیا۔ تو غنی کرنے والا، تم تو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دے سکتے، اور ہم کہتے ہیں نبی غنی کرتے ہیں۔ الذین یفرقون بین، اللہ سے پہلے والی آیت پڑھیے۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اب اس کی تشریح کیجیے۔ اس کی تشریح آپ کیجیے۔ میں کیوں کروں گا؟ آپ نے کہا 1 منٹ نہیں، میں کیوں کروں گا بھائی؟ آپ نے آپ کا دعویٰ ہے نا کہ میں کر رہا ہوں، سنو، آپ کو کرنے کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اچھا، جب میں نے کہا کہ انک لا تہدی کا ترجمہ کیجیے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں کیوں کروں گا، آپ کریں گے، اور جب آپ کی باری آئے تو دوسرے پہ الزام کہ آپ کے اندر پہلے تو قرآن پر بہتان بتائے، اب بہتان نہیں ہے یہ۔ اچھا، وہی تو نہیں، یہ ثابت ہو گیا سب سے بڑا بہتان ہے، صرف ترجمہ کر دینے سے، اور ظاہری یہ صرف ظاہری ترجمہ، جیسے کہ آپ اپنے عقل کی گھوڑا دوڑا رہے تھے کہ نبی ہدایت دے سکتے ہیں، خود آپ کے اعلیٰ حضرت نے اس کا یہ ترجمہ نہیں کیا ہے، اسی طرح آپ یہاں بھی جھٹلا رہے ہیں، صرف ظاہری ترجمہ سے پتہ نہیں چلتا، آپ اپنی طرف سے عقل کا گھوڑا دوڑاتے رہے ہیں۔ ہاں کیجیے، تشریح کیجیے۔ تشریح کریں گے تو تفسیر مفسرین نے جو تفسیر کیا ہے وہ تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ کب کریں گے آپ؟ جو ہے ابھی کروں گا انشاءاللہ۔ ہاں کیجیے۔ بریلی بھی جو ہے نا بھگانے والے ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں حضرات،
वो तो रात देखें, गुजर जाएगी देवबंदी देखेंगे। हाँ सुनो जाहिर सी देवबंदी बात है, साहब, अलबल बकोगे और इधर उधर की बातें बकने की करोगे। बात आप कर रहे हैं, बकने की बात आप कर रहे हैं। मैं देखो ऐसी आपको दिखाऊंगा, देखिए अभी सुनिए, पहले तर्जुमा सुनिए। बेशक जो लोग कुफर करते हैं अल्लाह व रसूल के कुफर साथ, होता है, कुफर होता है। कुफ्र, तब बताइए, आपको लफ्ज तक का पता नहीं है। मैं बहुत बता रहा हूँ, मैं वाज़ेह साफ साफ लफ्ज में बता रहा हूँ, कुफ्र करते हैं, समझे। बेशक जो लोग कुफ्र करते हैं अल्लाह व सूरह निसा रसूल, की कौन सी आयत बताएं आप? हाँ सूरह निसा की कौन सी आयत अभी तक बताएं? आपने निकाला नहीं और बात कर रहे हैं। सूरह निसा की 150 नंबर आयत है। 150 हम्म, आखिरी आयत है क्या? नहीं, 150 नंबर आयत है। सुनिए, जो लोग अल्लाह और रसूल के साथ कुफर करते हैं और यह चाहते हैं, इरादा रखते हैं अल्लाह और रसूल के दरमियान फर्क करे, फर्क करे अल्लाह और रसूल के दरमियान, वयकुलूना, और वो कहते हैं, नुमिनु बिबादिन व नकफुरु बिबाद, और वो कहते हैं कि इन बाज आयतों को मानो और बाज आयतों से कुफर करो, बाज आयतों का इनकार करो। हाँ, और वो इरादा करते हैं इनमें से अपने मफाद कुछ निकालने की वो इरादा रखते हैं, यत्तखिदु बैन ज़ालिका सबीला, वो यानी अल्लाह और रसूल यानी हिदायत से लेकर गुमराही की तरफ रास्ता निकालना चाहते हैं। उनके बारे में उलाइका हुमुल काफिरून हक्का व आतदना लिल काफिरीना अज़ाबम मुहीना, और यही सच्चे यानी यही पक्का काफिर है, काफिरून हक्का, हकीकत में काफिर है यही लोग जो अल्लाह और रसूल के दरमियान फर्क करते हैं। तो जो अल्लाह हिदायत देते हैं, अल्लाह हिदायत देता है, नबी ही हिदायत देते हैं, और जो इस नबी आयत की हिदायत देते हैं तशरीह अल्लाह कीजिए के आप, इल्म से ही देते हैं। और इन्न तुमने गलत जो आदि अल्लाह और पर रसूल जा के रहे हैं दरमियान आप। फर्क किया, आप इस आयत की तशरीह कीजिए। यहाँ कोई बीच में गुंजाइश नहीं, बिल्कुल हर आयत मुहक्कम है, साफ साफ लफ्ज है, तशरीह करने की एक आम इंसान भी तशरीह समझ रहा है। मैं पहले अच्छा, आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ, सुनिए। नहीं, एक मिनट, जब आप आम आदमी होकर के समझ सकते हैं तो फिर तशरीह करने से डर क्यों लग रहा है आपको? नहीं, मैं बोल रहा, मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह तुमसे बड़े आलिम हूँ मैं, अच्छा, और ये हमारे आवाम की बात कर रहा हूँ और तुम्हारे आवाम की भी बात कर रहा हूँ। ये जो लफ्ज मैं तर्जुमा कर रहा हूँ इसमें तशरीह की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, मैं कर रहा हूँ, सुनो। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही, जो शख्स कुफ्र करता है अल्लाह और अल्लाह के रसूलों के साथ, और यह इरादा रखता है, वह युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही, और वो इरादा रखता है अल्लाह और रसूल के दरमियान फर्क आप करे, तो सिर्फ तर्जमा ही कर रहे हैं। तशरीह पूछ रहा हूँ आपसे, तशरीह पूछ रहा हूँ, आप तर्जमा करते जा रहे हैं। तो अल्लाह और रसूल के दरमियान अल्लाह की चाहत, रसूल की चाहत को अल्लाह की चाहत के खिलाफ बताए, फर्क किसे बोलते हैं? तफरीका। तफरीका किसे बोलते हैं? हमारे और आपके दरमियान तफरीका, जो मिसाल के तौर पर इन्नल्लज़ीना यकफुरून, तर्जमा गौर कीजिए, इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिल्लाहि व रुसुलिही, बिला शुबा जो लोग कुफ्र करते हैं अल्लाह के साथ, ठीक, और उसके रसूलों के साथ, और युरीदूना, और यूं चाहते हैं कि अल्लाह के और उसके रसूलों के दरमियान फर्क रखे, युफर्रिकू बैन अल्लाहि व रसूलिही, ठीक, फर्क रखें। वयक़ूलूना, और कहते हैं कि हम बाज़ों पर तो ईमान लाए, नुमिनु बिबादिही व नकफुरु बिबाज़, और बाज़ के मुनकिर हैं, वयुरीदूना अन यत्तखिदू बैन ज़ालिका सबीला, और यूं चाहते हैं कि बैन एक राह तजवीज़ करें, उलाइका हुमुल काफिरून हक़्क़ा, और ऐसे लोग यकीनन काफिर हैं, वअतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना, और काफिरों के लिए आप यही मुनाफिक साबित हो गए, यहाँ के मुनाफिक साबित हो इस आयत से। अच्छा, मुनाफिक साबित हो गए आपने तो कैसे? कहा कि रसूल हिदायत देते हैं, तो मैंने कहा रसूल हिदायत देते, तो फिर अल्लाह हिदायत नहीं देते, तो आपने अल्लाह और रसूल फर्क कर लिया ना। इस आयत से कैसे आपने इस्तेमाल किया कि मुनाफिक हो गए? आपने तो इस आयत में क्या है, आपने आपके तर्जुमा के हिसाब से यही है कि इस आयत आपने क्या कहा था कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल में तफरीक करने वाले मुनाफिक है, तो इस आयत से आपने कैसे इस्तेमाल किया है?
जरा ये मैं जानना चाहूंगा। हाँ, इस आयत से ये इस्तेंबात इसलिए किया आपने कहा, ये मैंने अच्छा, जब कहा ये इस्तिंबात और रिसर्च आपका है या आपके किसी अकाबिरीन में से है, तो या आप किसी हमारे मोतबर किताब का, या किसी मुफस्सिर और तफसीर का हवाला दे सकते हैं? बिल्कुल खुला खुला आयत का जो मफहूम है आपके एक सरासर खिलाफ मिनट, है। मफहूम आयत में है देखिए। कि अल्लाह और रसूल हाँ। के दरमियान फर्क करे, अल्लाह और रसूल के दरमियान फर्क करना चाहते हैं, उसके हम्म बारे में अल्लाह, ये मुनाफिकीन के बारे में आयत है, हम्म ये मुनाफिकीन के बारे में आयत है। और मुनाफिक वो है बीच में रास्ता निकालना चाहते हैं। कौन है? मुनाफिक लोग निकालना चाहते हैं, किसका ईमान और तर्जमा कुफर के मुनाफिक कर दरमियान रहे हैं तीसरा आप? एक रास्ता निकाले। किसका तर्जमा मुनाफिक कर रहे हैं? ईमान और कुफर के दरमियान जो रास्ता निकालना चाहते हैं, बैन बैन रास्ता निकालना, तो वो कौन लोग चाहते थे नबी के जमाने में? एक तो यहाँ अबू जहल खुला काफिर था, यहाँ और किसका तस्करा चल रहा है? हाँ, ये मुनाफिकीन के बारे में है। अच्छा, मुनाफिकीन के बारे में है। हाँ, और वही मुनाफिकत आपने किया है अभी। कैसे पता चला ये मुनाफिक के आपने बारे कहा, में है? आपने क्या कहा कि नबी हिदायत देते हैं, अल्लाह नहीं देते। मतलब क्या हुआ? नबी और अल्लाह के दरमियान आप फर्क कर रहे हैं। और हमारा दावा है कि नबी जो कुछ देते हैं अल्लाह की अता से ही देते हैं, अल्लाह की इज़्न से देते हैं, और नबी के हर अमाल से अल्लाह राजी है। नबी के हर अमाल से अल्लाह राजी है, अल्लाह के रजा से ही अल्लाह के रजा से ही नबी देते हैं। तो आपने बीच में जो नबी को अल्लाह से फर्क किया, तो इसी के बारे में इस आयत में है, इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही व युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रुसुलिही। ये आप फंस गए जनाब, बुरी तरह फंस गए इसमें। अच्छा। आपके बारे में ही, आपके बिल्कुल आप जो अकीदा लेके आए हैं उस अकीदे को कुरान रद्द कर रहा है। अच्छा, कुरान रद्द कर रहा है। आप माने, अपनी गलती माने, तस्लीम करें, तौबा करें, शिरक से तौबा करें, कुफर से तौबा करें, बुत परस्ती से आप तौबा करें, और अच्छा, आप हम बुत सच्चे की परस्ती मुसलमान बन करते जाए। हैं हाँ? या आप कबर परस्ती करते हैं या हम बुत परस्ती करते हैं? तुम देव का मतलब क्या है? बुत है, देव अच्छा। बंदर, देव